Hello students, welcome in Sohi's teaching channel. This is Basant Singh Sohi from Sohi's teaching. In this video we will discuss about the Newton's first law of motion and inertia for class 9th. So let's start. First of all, statement of Newton's first law of motion. According to this law, everybody continues in its state of rest or uniform motion in a straight line unless compelled by some external force to change that state. Means to say कि अगर कोई body rest पे है तो it tends to remain at rest, and if a body is in uniform motion then the body is remained in its state of uniform motion unless compelled by any external forces applied on that body. फिर एक बार एक्सप्लेन करिए कि अगर कोई बॉडी रेस्ट ते है तो वो रेस्ट ते ही रहना चाहेगी. बॉडी जिहड़ी है वो अपनी रेस्ट पोजीशन ਨੂੰ चेंज करना नहीं चाहती, वो रेस्ट ते ही रहना चाहती है. वो अपनी रेस्ट पोजीशन उदो चेंज करूगी when some external force we have applied on the body. Same as it is if the body is in a state of motion, सो वो बॉडी मोशन च ही रहूगी जब तक वो उपर कोई भी फोर्स जी है अनबैलेंस्ड फोर्स जी है अप्लाइड नहीं होंगी. रेस्ट वाली बॉडी रेस्ट से रहूगी, मोशन वाली बॉडी मोशन च ही रहेगी जब तक उस उपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं करते, अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं करते. सेकेंड है इनर्शिया. Inertia is that tendency of the body to oppose or to resist any change in its state of rest or uniform motion. किन्ना oppose कर रही है body कि वो अपनी rest वाली position ਨੂੰ नहीं छड्डना या फिर वो अपनी uniform motion ਦੀ ਜਿਹੜੀ state है ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਨਾ, resist करना, oppose करना. This is called inertia, right? So Newton's first law of motion is also known as law of inertia. न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है इट इज़ ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया. लॉ ऑफ इनर्शिया इज द न्यूटन लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, राइट. सो स्टेटमेंट सीगी कि अगर कोई बॉडी रेस्ट से है तो रेस्ट से ही रहने की कोशिश करती है जब तक वो पर फोर्स ना लगे. अगर कोई बॉडी मोशन च है तो मोशन च ही रहने की कोशिश करती है जब तक वो पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं होंगी. और जिन्नी कोशिश जिन्नी टेंडेंसी उस बॉडी की ज़्यादा होएगी अपनी पोजीशन को रिमेंड रखने लिए, मतलब कि अपोज करना है चेंज नू, उन्ना ही ज़्यादा उसका इनर्शिया होएगा. सो मूव करते हैं नेक्स्ट. इनर्शिया है थ्री टाइप्स का. नंबर वन इज़ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, नंबर टू इज़ इनर्शिया ऑफ मोशन एंड नंबर थर्ड इज़ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. सो लेट्स एक्सप्लेन all these three types of inertia one by one. So first of all we have inertia of rest. Rest means body is not changing its position with respect to time. So what is inertia of rest? The tendency of the body to oppose any change in its state of rest. In its state of rest is called inertia of rest. मतलब कि body अपनी rest position को change करने लिए oppose कर रही है. So this is the inertia of rest. Let's see some examples of inertia of rest. One by one examples देखिए daily life according to which the inertia of rest happen. So first example है कि when a bus suddenly starts moving forward, the passengers in the bus falls backward. आप बस बैठे हुई है, किसी कार बैठे हुई है, किसी व्हीकल बैठे हुई है, and the car, bus or any vehicle starts suddenly move in the forward direction. then ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਕਵਰਡ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗਦੇ ਆ, they fall backward. what is reason behind this? reason है inertia of rest. reason की है जी inertia of rest. same कि passengers and bus, passengers and car, any vehicle both are at rest. ਹੁਣ firstly ਉਹ rest ਤੇ ਹੈ, but ਕੀ ਹੋਇਆ lower part of the body of the passenger in contact with the bus comes in motion suddenly when the bus starts moving. तो बस एकदम मूव कर दी है, तो जो बॉडी का पार्ट अपना बस के नाल अटैच्ड है, कॉन्टैक्ट है, वो भी एकदम सडनली मूव करूगा फॉरवर्ड डायरेक्शन. लेकिन बॉडी चाहती की सी रेस्ट से रहना चाहती सी, बिकॉज इनर्शिया ऑफ रेस्ट करके
राइट। सो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी रिमेन्ड एट रेस्ट एंड जो अपर पार्ट बॉडी का रेस्ट ते ही रहिंदा दैन की हुंदा है कि बॉडी दी अपर पार्ट जिहड़ा यानी कि परसन जिहड़ा वो बैकवर्ड नू फॉल करता है, बैकवर्ड नू शॉक लगता है, राइट। सो नंबर टू एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल है कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक टू रिमूव द डस्ट पार्टिकल्स। यू कैन सी फ्रॉम दिस पिक्चर कि when we beat a carpet with the help of stick the dust comes out. Why it is so? Same as is inertia of rest. ਹੁਣ carpet है and dust है, both are at rest. That's why according to inertia of rest वो दोनों rest से ही रहना चाहते हैं. But suddenly when we beat this carpet it comes in motion. एकदम motion च आ जाता है, but the dust particles remained at rest due to the inertia of rest and they fall down. They comes out from the कारपेट। ओके है जी। सो कारपेट एकदम मोशन च आ गया लेकिन पार्टिकल्स रिमेन्ड एट रेस्ट ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट ते वो एकदम डिग गए। उस तो भी बेस्ट एग्जांपल देखनी है तो आ देखियो जी, हुण तुहाडी स्क्रीन ते है ये, आओ देखो जी। सो मच डस्ट इज कम्स आउट फ्रॉम दिस कारपेट व्हेन दे शेक इट सडनली, राइट। सो सेम है कि दिस कारपेट कम्स इन मोशन बट डस्ट पार्टिकल्स रिमेन्ड एट रेस्ट, दैट्स वाई इनर्शिया ऑफ रेस्ट करके वो बाहर नू आ गए। सो चलते हैं जी नेक्स्ट नंबर 3 एग्जाम्पल। बड़ी कॉमन एग्जाम्पल है व्हेन ए बुलेट फायर्ड फ्रॉम ए गन मेक्स ए स्मॉल होल इन द विंडो पेन बट द स्टोन स्ट्राइकिंग द विंडो पेन ब्रेक्स इट। जो एक बुलेट नाल असीं फायर करते हैं तो बुलेट विचों होल करके उस ग्लास पीस चों पार चली जाती है, लेकिन अगर असीं कोई स्टोन थ्रो करते हैं ग्लास उपर दैन की हुंदा है कि उस ग्लास नूं ब्रेक डाउन करता है, लेकिन बुलेट ब्रेक डाउन नहीं करती। रीजन की है? रीजन इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। एक्चुअल की है कि सारे ग्लास के पार्टिकल जिहड़े ने वो कादे च है? रेस्ट दे हैं, लेकिन फास्ट मूविंग बुलेट जो इस ग्लास पार्टिकल्स नाल स्ट्राइक करती है तो इमीडिएट ये जिहड़े पार्टिकल्स है कम्स इन मोशन आ जाते हैं। सो एकदम उन्ना क पोर्शन जिहड़ा है फास्ट स्पीड होने करके वेरी हाई स्पीड, राइट, वेरी हाई स्पीड होने करके जिहड़े पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल ये चो पार निकल जाते हैं, वो जो होल हो जाता है, लेकिन रेस्ट ऑफ द ग्लास पार्टिकल्स जिहड़े हैं वो रिमेन्ड एट रेस्ट ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड देयरफॉर स्मॉल होल इज मेड बाय द बुलेट इन द विंडो पेन। बट ऑन द अदर हैंड कि जो स्टोन है इट हैज़ नॉट सो मच हाई स्पीड, इसकी स्पीड बुलेट के कंपैरेटिवली घट है, राइट। सो हुण जदों ये स्ट्राइक करता है ग्लास पार्टिकल्स के नाल तो ग्लास के पार्टिकल्स भी खुद भी मूव कर लग जाते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टोन। सो दैट्स वाई जो खुद मूव करते हैं तो स्टोन जिहड़ा है वो इस ग्लास दे पीसेस कर दिंदा है, यानी कि इहनूं ब्रेक डाउन कर दिंदा है इनटू द स्मॉल पीसेस। होप सो के इनर्शिया ऑफ रेस्ट समझ में आया होगा। एक एग्जांपल होर है, ये भी बड़ी बेस्ट कॉमन एग्जांपल है कि व्हेन ए ट्री शेकन सडनली द लीव्स और द फ्रूट्स लीव्स फ्रॉम फॉल फ्रॉम द ट्री। यू कैन सी फ्रॉम हेयर कि एप्पल के ट्री नूं जदों असीं किसी मशीन नाल बहुत सडनली शेक कर दिंदे हैं तो एप्पल के जिन्ने भी फ्रूट्स है वो सारे फॉल डाउन कर जाते हैं, लीव्स जिहड़े है वो फॉल डाउन करते हैं। रीजन सेम है। रीजन की है कि ब्रांचेस एंड फ्रूट्स, ब्रांचेस एंड लीव्स बोथ आर एट रेस्ट ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। बट आपां की कीता सडनली वी सडनली शेक द ब्रांचेस, दैट्स वाई द ब्रांच कम्स इन मोशन। तो मोशन च आ गए, दैट्स वाई की हो गया कि जिहड़े लीव सीगे या फ्रूट सीगे वो रेस्ट ही रहे तो गैट डिटैच हो गए फ्रॉम द ट्री एंड फॉल डाउन। सो ये सीगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट। नाउ मस्ट नंबर एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल नंबर 5 हुणे यू कैन सी हेयर कि अगर असी एक कार्ड उपर 5 रुपीज़ कॉइन रखते हैं और कार्ड नूं असी किसी फिंगर से नाल फ्लिक कर देने हैं, मतलब उन्होंने इत्थों हटा देने हैं, तो ये जिहड़ा कॉइन है इट विल फॉल डाउन इनटू द ग्लास। रीजन की है कि दिस कॉइन इज एट रेस्ट ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड दिस कार्ड इज ऑल्सो एट रेस्ट ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। बट असीं की कीता इस कार्ड नूं फ्लिक करता, मतलब इनू मूव करता, राइट, लेकिन आ जिहड़ा कॉइन सीगा इट रिमेन्ड एट रेस्ट, दैट्स वाई इट फॉल डाउन इनटू द ग्लास। यू कैन सी फ्रॉम हेयर ऑल्सो कि जो असीं एक पाइल नूं बिल्कुल नीचे मूव करते हैं तो उपरली जिहड़ी है वो ब्लॉक्स जिहड़े हैं वो बिल्कुल हेठां नूं फॉल डाउन कर। सो सैकेंड नंबर है साडे पास इनर्शिया ऑफ मोशन। मोशन करके मतलब कि हुण बॉडी जिहड़ी आ मोशन च रहूगी, अपने मोशन दी स्टेट नूं रजिस्ट करूगी, चेंज नहीं होण देगी, राइट। द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। हुण बॉडी मोशन च है तो मोशन च ही रहना चाहती है, सो दिस इज कॉल्ड द इनर्शिया ऑफ मोशन। यू कैन सी फ्रॉम हेयर
कि जदों एक राइडर मोटरसाइकिल राइडर या बाइक राइडर एकदम किसी पार्टिकल नाल स्ट्राइक करता है, किसी ऑब्सटकल नाल स्ट्राइक करता है, तो उहदा जिहड़ा बाइक है वो रेस्ट च आ गया, लेकिन वो खुद रेस्ट नहीं आया क्योंकि मोशन च सीगा, तो मोशन च ही रहना चाहता है ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन एंड फॉल फॉरवर्ड, तो अगे नूं जाके गिरदा है। तो लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ द इनर्शिया ऑफ मोशन वन बाय वन। सो फर्स्ट एग्जांपल है वेरी फनी एग्जांपल कि व्हेन पैसेंजर्स फॉल फॉरवर्ड व्हेन ए फास्ट मूविंग बस और कार स्टॉप्स सडनली। सेम यही होया कि दोनों जिहड़े सीगे परसन भी ते कार भी बोथ आर एट मोशन। सो जो दोनों मोशन च है बट सडनली जो कार इस स्ट्रगल नाल टकराई तो रुक गई, कम्स इन रेस्ट, बट जिहड़ा परसन सीगा इट रिमेन्स इन मोशन, दैट्स वाई ये की हो गया, ये अगे नूं फॉल फॉरवर्ड हो गया, राइट। तो वो अगे नूं जा गया। सो दिस इज द ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन, राइट। तो नेक्स्ट सही देखते हैं जी एग्जाम्पल नंबर 2 साढ़े पास है कि लगेज इज यूजली टाइड विद द रोप ऑन द रूफ ऑफ द बसेस। तुम बसेस के उपर देखोगे, वहीकल्स के उपर देखोगे, जोड़ा समान है इट इज़ टाइड विद द हेल्प ऑफ रोप, रस्सियां नाल चंगी तरह बन के रखते हैं। रीजन की है, रीजन सेम है जी कि जो बस या कार कोई भी वहीकल है वैन सडनली स्टॉप्स तो लगेज की होगा, मोशन होएगा, तो वो मोशन ही रहना चाहता है ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन, हेंस द लगेज मे फॉल फॉरवर्ड ऑन द रूफ ऑफ द buses or any vehicle. That's why to avoid this fall of luggage it is tied with the rope on the roof of the bus or any vehicle. So दोनों ही रेस्ट ते आ जाने, इमीडिएट जब रेस्ट ते आना है दोनों ही मूव करना, अगर मूव करते हैं दैट्स वाई आप की करते हैं उन्होंने टाई अप करके रखते हैं। यही एक रीज़न है कि सानू सीट बेल्ट्स लिए भी कहा जाता है कि वैन वी हैव ड्राइव वैन वी आर सिटिंग इन द फ्रंट सीट ऑफ द कार वी हैव टू टेक सीट बेल्ट। क्यों? बिकॉज कि सीट बेल्ट नाल असी बिल्कुल टाई अप रहांगे सीट नाल। अगर सडनली कार रुकती है, बाय एक्सीडेंटली कार रुकती है सडनली, तो असी भी इहदे नाल रुक जाइए, अदरवाइज इनर्शिया मोशन करके असी फॉल फॉरवर्ड होवांगे और सानू जिहड़ी है कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, कोई एक्सीडेंट च इंजरी हो सकती है। सेम इज़ हैपनड हेयर। एक एग्जाम्पल होर लैके आए हैं। एग्जाम्पल की है कि जदों आपां इस हैमर नूं स्ट्राइक करते हैं हेठां नूं तो ये जड़ा बिल्कुल फिट हो जाता है ये, क्योंकि ये मोशन च है, मोशन च ही रहना चाहता है, लेकिन दिस हैंडल कम्स इन रेस्ट ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन, बट इट सडनली कम्स इन टू रेस्ट, बट इट रिमेन्ड इन द मोशन, हैमर पार्ट रिमेन्ड इन द मोशन, दैट्स वाई फिट इन टू द हैंडल। नाउ थर्ड पॉइंट है जी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन मीन्स सेम है कि हुण बॉडी जिस डायरेक्शन च मूव कर रही है दैट बॉडी रिमेन्ड इन दैट डायरेक्शन, मूव इन दैट डायरेक्शन, मतलब अपनी डायरेक्शन नूं भी चेंज करन नूं अपोज करती है। सो टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन द डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, राइट। यू कैन सी एग्जांपल्स ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। फर्स्ट एग्जाम्पल है कि वैन ए फास्ट मूविंग बस टेक टर्न ऑन द कर्व्ड रोड। जो एक रोड के उपर बस एक मोड़ कटती है, कोई टर्न करती है, कर्व्ड पाथ के उपर मुड़ती है, जेडे पैसेंजर्स है दे फॉल टुवर्ड द सेंटर ऑफ द कर्व्ड पाथ। यू कैन सी फ्रॉम हेयर कि जो ये कार इधर नूं टर्न करूगी, कर्व्ड पाथ के अकॉर्डिंगली मूव करूगी, तो जोड़े पैसेंजर्स हैं वो भी वो नाल टेढ़े नूं गिरते हैं, साइड वाइज दिखते हैं। क्यों? क्योंकि कार इज मूविंग इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, पैसेंजर्स ऑल्सो मूव इन पर्टिकुलर डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू देयर मोशन, राइट। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन करके वो सेम मोशन ही रहना चाहते हैं, सेम डायरेक्शन ही रहना चाहते हैं, लेकिन व्हेन द कार टेक्स ए टर्न ऑन द कर्व्ड रोड तो पैसेंजर्स सेम डायरेक्शन ही रहना चाहते सी, अपोज करते हैं टू एनी चेंज इन देयर डायरेक्शन, दैट्स वाई वो की करते हैं फॉल करते हैं टुवर्ड द सेंटर ऑफ द कर्व्ड पाथ, दैट्स वाई वो साइड वाइज में मूव करते हैं। यू कैन सी अनदर एग्जाम्पल कि जो एक बाइक जी है वो कर्व्ड पाथ के उपर टर्न करती है, मुड़ती है, तो बाइक थोड़ी टेढ़ी हो जाती है, राइट। सेम है कि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, वो डायरेक्शन सेम च जाना चाहते हैं, अपोज करते हैं चेंज इन डायरेक्शन, दैट्स वाई। लेकिन बाइक या मोटरसाइकिल जो है वो अपने पाथ तो चेंज होंदा है क्योंकि कर्व्ड पाथ है, रस्ते रस्ते तो मुड़ना उन्हें, बट पैसेंजर सेम पाथ पर रहना चाहते हैं, डायरेक्शन च सेम च रहना चाहते हैं, इस करके वो साइड वाइज डिगते हैं, फॉल करते हैं, राइट जी। उस तो बाद साढ़े पास है एक मेन चीज़ दैट इज़ इनर्शिया एंड मास। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट याद रखियो, द इनर्शिया ऑफ द बॉडी डिपेंड्स ऑन द mass of the body, means to say more the mass more the inertia, less the mass less will be the inertia. Same example is here, an elephant has more inertia than human body. Why? Because elephant has more mass, more the mass more the inertia, right ji।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। ये कुछ NCERT ਦੇ पेज नंबर 180 ਦੇ कुछ क्वेश्चंस हैं। होप्स हो कि तुसी ये सारे क्वेश्चंस खुद कर लोगे। सेम क्वेश्चंस हैं जिहड़े आपां हुणे इस वीडियो च डिस्कस कीते हैं। सो दिस इज़ अ फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम द एक्सरसाइज पार्ट, यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। सो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, एंड हाउ इज़ माई वर्क प्लीज़ राइट इन द कॉमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक लिए गुड बाय, टेक केयर।